हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8th की जो आपकी साइंस की बुक है उसका चैप्टर नंबर 3। अब चैप्टर 3 की आप अगर स्टार्टिंग में देखते हैं तो आपको ये दिखाई देता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 11.4% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज़ डायबिटिक, या फिर रिड्यूस ऑयल इन डाइट बाय 10%। फास्ट फूड इज़ वन ऑफ द लीडिंग कोज ऑफ डायबिटीज़। तो यहाँ पर मोस्टली किसके बारे में बताया गया, डायबिटीज़, यानी कि जो जो प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ है। और इसी से रिलेटेड आपका चैप्टर है हेल्थ, द अल्टीमेट ट्रेजर। सो चैप्टर के स्टार्टिंग में जो आपके क्वेश्चन थे, हाउ डज योर बॉडी रिस्पॉन्ड टू एन इन्फेक्शन सच एज द कॉमन कोल्ड। सो द बॉडी रिस्पॉन्ड टू अ कॉमन कोल्ड caused by viruses through the immune system. Symptoms like a runny nose, sore throat or cough occurs as the body fight the infection. The immune system produce antibiotic to neutralize the virus, and white blood cells attack infected cells. Rest, hydration and sometimes medication help recovery. We rarely see case of smallpox or polio these days, but diseases like diabetes and heart problem are more common. Why? Smallpox and polio have been nearly eradicated due to the widespread vaccination program. In contrast, non-communicable diseases like diabetes and health problems are increasing due to modern lifestyle factors such as unhealthy diets and lack of exercise, stress, and longer life expectancy. Could climate change lead to new type of disease? So yes, climate change can lead to new or increased disease risks. Warmer temperature and changing weather patterns can expand the range of disease carrying vectors like mosquitoes. After water quality and create condition of new pathogens to emerge or spread more easily. How do emotions like stress or worry affect us and make us sick? So, stress or worry can weaken the immune system by releasing hormones like cortisol, making the body more susceptible to infection. Chronic stress can also contribute to non-communicable disease like high blood pressure or diabetes by affecting sleep, diet, and mental health. What do some group of people get affected more than others during disease outbreaks? So some groups are more affected due to the factors like weaker immunity, poor living condition, malnutrition, or pre-existing health issues. Social factors such as crowded living space or limited healthcare access also increase vulnerability. So health, is it more than not falling sick? तो क्या ये यही है कि आप सिक नहीं हो रहे, बीमार नहीं हो रहे, तो that is health? So who do the news clipping on the notice board tell you about people's health in our country? तो जो नोटिस बोर्ड अभी हमने देखे यहाँ पर, तो क्या बता रहे हैं वो लोगों के हेल्थ के बारे में हमारी कंट्री में? इज बीइंग हेल्दी जस्ट अबाउट नॉट हैविंग डिजीज? क्या हेल्दी होने का मतलब सिर्फ ये कि आपको कोई बीमारी नहीं है? हेल्थ ऑल्सो इंक्लूड्स फीलिंग गुड फिजिकली, स्टेइंग पॉजिटिव एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स. सो हेल्थ का मतलब क्या है कि आप फिजिकली अच्छा फील कर रहे हैं, पॉजिटिव हैं, और स्ट्रॉन्ग जो रिलेशनशिप हैं वो आपकी भी स्ट्रॉन्ग है. हेल्दी पर्सन takes care of their body, maintains a positive mindset and enjoys social life. एक जो healthy person होता है वो अपनी body की take care करता है, mindset mostly positive रखते हैं and enjoy social life को बहुत enjoy करते हैं. Let us explore what it truly means to be healthy. तो अब देखते हैं कि healthy होने का मतलब क्या है. सो एक्टिविटी है, अ ग्रेड 8 स्टूडेंट मूव टू अ न्यू स्कूल इन अनदर सिटी. तो दूसरी सिटी में नए स्कूल में उन्हें मूव करना था. विद नो फ्रेंड्स इन हिज न्यू एनवायरनमेंट एंड बिजी पेरेंट. अब पेरेंट बहुत बिजी हैं और ना ही कोई फ्रेंड है वहाँ पे नई जगह पर. ही फेल्ट लोनली, तो उसे बहुत जो अकेला फील होता था. टू कोप ही स्पेंट मोर टाइम ऑन हिज फोन एंड सोशल मीडिया, बट दिस मेड हिम फील वर्स. अब वो क्या करता, फ्रेंड भी नहीं थे, पेरेंट्स भी बिजी थे, तो वो क्या करता, ज़्यादातर टाइम जो अपने फ़ोन में यूज़ करता सोशल मीडिया पर. लेकिन इसकी वजह से इसकी कंडीशन और भी ख़राब हो गई. ही स्टॉप ट्राइंग टू मेक फ्रेंड्स. अब उसे दोस्त बनाने ही नहीं थे. हेडेक्स, सर दर्द रहने लगा, वेट लूज हो गया और कुड नॉट स्लीप वेल, और ना ही अच्छे से सो पाता था. अ डॉक्टर एडवाइज लेस स्क्रीन टाइम एंड मीटिंग अ काउंसलर. तो डॉक्टर ने एडवाइस किया कि सबसे पहले तो फ़ोन कम करो, सेकेंड काउंसलर से मिलो. द स्कूल काउंसलर अरेंज्ड हेल्प टू सपोर्ट हिम इन मेकिंग फ्रेंड्स एंड इम्प्रूविंग हिज हेल्थ. तो जो स्कूल काउंसलर है उन्होंने उनके लिए अरेंज की, हेल्प की, उसके दोस्त बनवाए, उसको हेल्प की, उस चीज़ में सपोर्ट किया, और जिससे कि उसकी हेल्थ में भी थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ. नाउ थिंक एंड रिफ्लेक्ट.
वट वॉज द कोज ऑफ द बॉयज हेल्थ प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम थी उसकी जो ये हेल्थ प्रॉब्लम आई, इसका रीज़न क्या था। हाउ डिड दिस हैबिट एंड सराउंडिंग अफेक्ट हिज वेलबिंग, और किस तरह से इसकी हैबिट्स ने और सराउंडिंग ने इनकी वेलबिंग को किस तरह से इफेक्ट किया। एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, health is defined as a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease। तो WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ क्या है, एक डिफाइंड है, स्टेट है किसका, कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीज से मतलब उनका ये नहीं है कि वो क्या है, हेल्दी है। A healthy person can perform various tasks more efficiently and cope well in different and difficult situation। और एक जो हेल्दी पर्सन होता है वो ज़्यादा टास्क कर सकता है और बहुत अच्छे से एफिशिएंटली कर सकता है और अलग अलग चीज़ों में अच्छे से कोप अप कर सकता है और डिफरेंट सिचुएशन, कोई भी डिफरेंट और डिफिकल्ट सिचुएशन हो वो अच्छे से उसमें एडजस्ट कर सकता है। A healthy person can adjust well with peer group and other member of society। एक हेल्दी पर्सन जो है पीयर ग्रुप के साथ भी, मतलब उनका जो ग्रुप है उसमें भी अच्छे से कोप अप कर लेता है, एडजस्ट हो जाता है, और बाकी जो मेंबर होंगे सोसाइटी में उनके साथ भी। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट द हेल्थ। अब ज़्यादा देखते हैं इसके बारे में। साइंटिफिक हेरिटेज, आयुर्वेदा टीचेस अस दैट ट्रू हेल्थ इज़ अ बैलेंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सराउंडिंग। ट्रू हेल्थ का मतलब क्या है, बॉडी, माइंड और सराउंडिंग, इन सब का बैलेंस। फॉलोइंग दिनचर्या, दिनचर्या मीन्स योर डेली रूटीन एंड ऋतुचर्या मीन्स सीजनल रूटीन। दिस हेल्प मेंटेन दिस बैलेंस। इनकी वजह से ही अगर आपका ये रूटीन बिल्कुल सही है, डेली रूटीन और ऋतुचर्या जो है सीजनल रूटीन, तो आपकी बॉडी जो है आपकी हेल्थ रहेगी, बैलेंस रहेगी, ये सब चीज़ें। ईटिंग फ्रेश होलसम फूड सूटेड टू वन प्रकृति, प्रकृति मीन्स बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप खाना खाते हैं, फ्रेश फूड खाते हैं, सीजन के अकॉर्डिंग जो खाना होता है वो खाते हैं, तो आपकी बॉडी सही रहेगी और ये एसेंशियल भी है। रेगुलर एक्सरसाइज, क्लीनिनेस, रेस्टफुल स्लीप एंड अ काम माइंड सपोर्ट ओवरऑल वेलबिंग। तो इनकी वजह से पूरा ओवरऑल वेलबिंग मिल जाता है, माइंड बिल्कुल सही रहता है। दिस कैन ऑल्सो बी अचीव्ड थ्रू प्रैक्टिसेस लाइक योगा, मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। अब ये कैसे आप अचीव कर सकते हैं, योगा से, मेडिटेशन से और माइंडफुलनेस से। हाउ कैन वी स्टे हेल्दी, हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं। सो स्टेइंग हेल्दी मीन्स ईटिंग न्यूट्रिशियस फूड, मेंटेनिंग हाइजीन, staying in a clean place, exercising regularly, getting proper sleep, spending time with family and friends and having a positive attitude। सो आपको क्या करना है हेल्दी रहने के लिए, नॉर्मल सी चीज़ें, न्यूट्रिशियस फूड खाना जो सीजनल में उस टाइम पे जो सीज़न चल रहा है उसमें जो अवेलेबल होता है वही फूड। हाइजीन मेंटेन करनी है, जहाँ भी रहते वो प्लेस जो है क्लीन होनी चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करना है, प्रॉपर स्लीप लेनी है और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। वट वी शुड डू एंड वट शुड नॉट डू टू कीप अवर सेल्फ हेल्दी, तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए खुद को हेल्दी रखने के लिए। सो एक लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट सम गुड हैबिट दैट योर पेरेंट्स, टीचर और एल्डर्स ऑफन एनकरेज यू टू फॉलो। तो आपको वो लिस्ट बनानी है जो आपके पेरेंट्स, टीचर या जो भी बड़ा है वो मोस्टली एनकरेज करते हैं कि हाँ तुम्हें ये काम करना चाहिए। जैसे क्या बोलते हैं, सुबह जल्दी उठना चाहिए, है ना, खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, ये करना चाहिए। वो तो जो भी चीज़ें हैं वो बताते हैं, जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें जिसके लिए वो खासकर ज़्यादा इंक्रेज करते हैं वो चीज़ें। हाउ मैनी ऑफ दीज आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन, और इनमें से कौन से आपकी डेली रूटीन के ऑलरेडी एक पार्ट है। विच वन वुड यू लाइक टू स्टार्ट फॉलोइंग, और कौन सा तुम फॉलो करना चाहते हो। एड टू द लिस्ट बिलो। जैसे कीप योर सेल्फ क्लीन एंड मेंटेन पर्सनल हाइजीन, ईट अ हेल्दी एंड बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज रेगुलरली, मेक टाइम टू रिलैक्स और मेडिटेट एवरी डे। नाउ थिंक अबाउट हैबिट्स दैट आर नॉट गुड। अब कौन सी आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन मोबाइल फोन्स और अदर डिजिटल स्क्रीन्स, eating fast food and other junk food every day, sleeping very late or not getting enough sleep, skipping meals, especially breakfast। तो इन सब की वजह से क्या होता है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती और ये वो आदतें हैं जो आप में नहीं होनी चाहिए। नाउ टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडी एंड माइंड इज इम्पोर्टेंट। हेल्दी हैबिट्स सपोर्ट अ हेल्दी बॉडी एज वेल एज अ हेल्दी माइंड। जो हेल्दी हैबिट है वो क्या करती है, हेल्दी बॉडी को सपोर्ट करती हैं और उसमें आपका माइंड भी हेल्दी रहता है। Now discuss your finding with your friends and teacher from the activity you participated in and discussion। तो इनमें आपको देखना है कौन सी एक्टिविटी है जो आपको हेल्दी रखती है और कौन सी वो एक्टिविटी है जो आपको हेल्दी नहीं रखती है, वो सब यहाँ पर बताना, डिस्कस करना है। You may have realized that our health depend
इट्स ओन मैनी फैक्टर। तो ये सब डिस्कस करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी हेल्थ जो है बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है। दीज फैक्टर इंक्लूड अवर लाइफस्टाइल, इसमें इंक्लूड है हमारा लाइफस्टाइल, हम कैसे रहते हैं, और हमारा एनवायरनमेंट। सो मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल, क्या क्या करना है? ईट अ बैलेंस डाइट विद प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड होल ग्रेन्स। अवॉइड प्रोसेस्ड, फैटी और शुगरी फूड्स एंड ड्रिंक्स। Stay physically active by playing outdoor, walking, running, cycling or exercising. Limit screen time and spend more time in nature. Get enough sleep to help your body and mind rest and recover. Practice yoga or simple breathing exercise like pranayam regularly. तो अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं तो आप हेल्दी रहेंगे. Say no to the harmful substance, things like tobacco, alcohol और एडिक्टिव थिंग्स, उनको हमेशा नो बोलना है, जो हम फिगर 3.2 में देखी थी ऊपर, ठीक है। नाउ कीप द एनवायरनमेंट क्लीन। अब हमने क्या बोला, हमारी हेल्थ डिपेंड करती है हम किस तरह से रहते हैं और किस जगह पर हमारा एनवायरनमेंट कैसा, सराउंडिंग कैसी है। तो अब अगर हम खुद को क्लीन रख रहे हैं, हेल्दी रख रहे हैं, तो हमें एनवायरनमेंट को भी क्या रखना है, क्लीन रखना है। लुक एट फिगर 3.3a एंड 3.3b, विच प्ले ग्राउंड वुड यू लाइक टू प्ले। तो आप इसमें खेलना चाहोगे या इसमें? तो डेफिनेटली ए होगा। Most of us would like to play in a playground shown in figure 3.3a as it is clean, क्योंकि वो clean है, well maintained है और अच्छा लग रहा है। The playground in 3.3b ये polluted है, dirty है, unhygienic है, बहुत सारी flies हैं, mosquitoes वगैरह हैं उसमें। People living in such areas may fall sick more often। तो ऐसी जगह पर जो लोग रहते हैं वो जल्दी बीमार होते हैं। In addition to in calculating good habits and adopting a healthy lifestyle, we must keep ourselves and our surrounding clean। तो हमें जो है अपनी सराउंडिंग को भी क्लीन रखना होता है। Have you ever found it hard to breathe in a place where with a lot of smoke or dust? क्या कभी आपने ऐसा फील किया है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट या स्मोक है वहाँ पे आपको सांस लेने में दिक्कत आती है? सो डैट इज़ बिकॉज क्लीन एयर एंड वाटर आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो क्लीन एयर और वाटर है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सिटीज़ एयर पोल्यूशन फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज कैन कोज प्रॉब्लम लाइक कफिंग और अस्थमा। अब सिटीज़ में क्या होता है, एयर पोल्यूशन ज़्यादा होता है व्हीकल्स और फैक्ट्रीज़ की वजह से, जिसकी वजह से अस्थमा या फिर कफिंग जैसी प्रॉब्लम होती है। द एयर क्वालिटी इंडेक्स EQI हेल्प अस नो हाउ क्लीन द एयर इज़। तो इससे हमें पता चलता है कि हवा जो है कितनी क्लीन है। अ क्लीनर एनवायरनमेंट हेल्प अस स्टे हेल्दी एंड फील बेटर। एक क्लीन अगर एनवायरनमेंट है तो वो हमें हेल्दी रखने में और अच्छा फील करने में हेल्प करता है। बट हेल्थ इज़ नॉट ओनली अबाउट द बॉडी, लेकिन हेल्थ से बॉडी के बारे में ही नहीं है। आवर फीलिंग्स एंड रिलेशनशिप मैटर टू, हमारी फीलिंग्स और रिलेशनशिप भी मैटर करते हैं। इवन इफ़ वी ईट वेल एंड लिव इन अ क्लीन प्लेस, हम जो है अच्छी जगह पर खाना, मतलब अच्छा खाना खाते हैं और क्लीन जगह पर रहते हैं, वी मे नॉट फील गुड इफ़ वी आर लोनली और अपसेट। तो हमें ज़रूरी नहीं कि अच्छा ही फील होगा, कि अब तक हम अकेला फील कर रहे हैं, अपसेट फील कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। स्पेंडिंग टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, टॉकिंग, लाफिंग एंड हैविंग फन हेल्प कीप आवर माइंड्स हेल्दी टू। और ये सब चीज़ें करके अपनी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ बातें करके, हंस के, उनके साथ टाइम स्पेंड करके, फन करके हमारा माइंड हेल्दी रहता है। हाउ डू वी नो डैट वी आर अनवेल? अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो है अनवेल हैं, हमारी तबीयत खराब या हेल्दी नहीं है? सो आवर बॉडी यूजुअली वर्क्स इन अ सर्टेन वे टू कीप अस हेल्दी। तो हमारी बॉडी जो एक तरह से काम करती रहती है ताकि हम हेल्दी रहें। When we feel unwell, जब हमें अच्छा नहीं लगता है, it means something inside us may not be working as it should। सो इसका मतलब क्या है कि हमारे अंदर जो बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं या जो भी चीज़ें हैं उनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ आ रही है और वो वैसे काम नहीं कर रहे हैं जैसे उन्हें करना चाहिए। वी मे हैव सिम्टम्स सच एज पेन, टायर्डनेस और डिजीनेस और साइन लाइक फीवर, रैश, हाई ब्लड प्रेशर और स्वेलिंग डैट इंडिकेट वी आर अनवेल। अब इसमें क्या हमारे जो है बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो हमें लगते हैं, जैसे कि पेन होती है या बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, चक्कर आने लगते हैं, फीवर, रैशेज, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब होता है जिससे हमें पता चलता है कि हम बीमार हैं या अनवेल हैं। अ सिम्टम इज़ व्हाट वी फील, कोई भी सिम्टम जैसे जो हम फील करते हैं, जैसे कि पेन, वाइल अ साइन इज समथिंग डैट कैन बी सीन और मेजर्ड, या फिर कोई ऐसा साइन हो सकता है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे कि हाई बॉडी प्रेशर होता है, व्हेन वी हैव फीवर, सॉरी टेम्परेचर जो है ज़्यादा हो जाता है, हाई बॉडी टेम्परेचर हो जाता है जब फीवर होता है, तो इन चीज़ों को हम मेज़र कर सकते हैं।
These help doctor understand what might be making us unwell. इन साइन से, इन चीज़ों से क्या होता है, डॉक्टर को पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम है और किस तरह से हमें ठीक करना है. डिजीज, व्हाट आर कोजेज एंड टाइप्स. अ डिजीज इज अ कंडीशन. अब डिजीज क्या, एक कंडीशन होती है जो अफेक्ट कर देती है नॉर्मल वर्किंग ऑफ द बॉडी और माइंड. जो हमारी बॉडी नॉर्मली काम कर रही होती है, माइंड नॉर्मली काम कर रहा है, तो उसको वो क्या कर देती है, अफेक्ट कर देती है, इसलिए वो सही से काम नहीं करता है. फिर इट कैन हैपन व्हेन वन और मोर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम स्टॉप फंक्शनिंग प्रॉपरली. ये कब होता है, जब हमारा एक ऑर्गन या एक से ज़्यादा ऑर्गन या पूरा ऑर्गन सिस्टम सही से काम करना बंद कर दे. Some diseases are caused by germs like bacteria, viruses, fungi, worms or even by protozoa, single-celled organisms. अब कुछ डिजीज़ जो हैं हमारी जर्म्स की वजह से होती है, जो बैक्टीरिया, वायरस, इन सब से आती हैं. These disease causing organism आर कोल्ड पैथोजेंस. इन्हें हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस. अदर डिजीज़, अब दूसरी डिजीज़ भी होती हैं, ये तो हमारी हो गई, चलो इनसे हो गया जम्स की वजह से, लेकिन बाकी डिजीज़ भी होती हैं. मे रिजल्ट, अब वो किसकी वजह से होती है, अगर आपका न्यूट्रिशन सही नहीं है और एन अनहेल्दी लाइफस्टाइल है तो उसकी वजह से भी डिजीज़ होती है. सम डिजीज़ लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम. कुछ डिजीज़ होती है जो थोड़े टाइम तक रहती हैं, वाइल अदर कैन कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड नीड रेगुलर ट्रीटमेंट और केयर. और कुछ ऐसी होती हैं जो लंबे टाइम तक रहती हैं और उनको जो है रेगुलर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और केयर की ज़रूरत है. अगर ना हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं. डिजीज़ कैन बी ग्राउंडेड इनटू टू मेजर टाइप्स बेस्ड ऑन देयर कोज एंड हाउ दे आर स्प्रेड. सो डिजीज़ को हम दो ग्रुप में जो है, दो मेजर ग्रुप में अलग अलग टाइप से इनको डिवाइड कर सकते हैं कि किस तरह से ये होती हैं और किस तरह से ये फैलती हैं. इस तरह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. सो सम डिजीज़ लाइक कैंसर, डायबिटीज़ और अस्थमा आर नॉट कोज्ड बाय पैथोजेंस. ये पैथोजेन से नहीं होती हैं. डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. और एक पर्सन से दूसरे पर्सन के ये स्प्रेड नहीं होती हैं. दे आर यूजली लिंक टू लाइफ स्टाइल. ये होती है आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, डाइट कैसी है, आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है. दूसरी होती है कम्युनिकेबल डिजीज़. अब ये क्या होती हैं, डिजीज़ कोज्ड बाय पैथोजेंस. ये पैथोजेंस से जो होती हैं वो क्या होती है, कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है. यानी कि अगर आप एक ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जिसको ये इशू है, तो ये डायरेक्ट अगर आप उनसे कांटेक्ट में आते हो या उनकी एयर के साथ कांटेक्ट में आते हो, या इनडायरेक्टली जैसे कि उन्होंने जो कपड़े पहने वो ले लिया, या उन्होंने जो खाना खाया वही खाना आपने खा लिया, या मॉस्किटो बाइट से भी ये हो सकता है. तो ये सब क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है. ये दूसरे जो यानी कि जो इंसान ऑलरेडी अफेक्टेड है, अगर उसके आसपास या उसके पास आप रहते हैं या उससे किसी भी तरह से कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वो आपको भी हो सकती हैं. They can spread from one person to another. Some example of communicable disease are typhoid, dengue, flu, chickenpox and COVID-19. In recent year, non-communicable disease जिसे NCD भी बोला जाता है, like diabetes, heart disease and cancer have become more common in India. तो आजकल जो है ये डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं. दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ चेंजेस इन हाउ पीपल लिव. ये डिपेंड कर रहा है कि किस तरह से लोग रहते हैं. सच एज ईटिंग मोर प्रोसेस्ड फूड, ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं, लिविंग लॉन्गर लाइफ्स. एंड टुडे मोस्ट डेथ इन इंडिया आर कोज्ड बाय एनसीडीज. और ज़्यादातर डेथ होती है वो एनसीडी की वजह से ही होती है, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनसे. अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स. अब इन दोनों के टाइप के डिफरेंसेस समझने के बाद हेल्प अस नो हाउ डिजीज स्प्रेड एंड हाउ टू प्रिवेंट दैम. अब ये कैसे डिजीज़ जो है स्प्रेड होती है और कैसे प्रिवेंट करना है. तो देखो इनसे जो एनसीडी हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, इनको क्या कर सकते हैं, लाइफ स्टाइल जो अपना सही कर सकते हैं, खाना वगैरह सही कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, हो जाएगा. और जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है उनका भी सबसे इम्पोर्टेंट वही है आपकी जो कि आपका एनवायरनमेंट है वो क्लीन रहना चाहिए, आपकी हाइजीन वगैरह पे आपको सबको ध्यान देना है. सेकंड थिंग, अगर कोई इंसान अफेक्टेड है तो उससे जितना हो सके दूरी बनानी है. हाउ आर कम्युनिकेबल डिजीज़ कोज्ड एंड स्प्रेड. अब ये कम्युनिकेबल डिजीज़ कैसे आती हैं और स्प्रेड क्यों होती हैं या कैसे होती हैं. सो ऑल कम्युनिकेबल डिजीज़ आर कोज्ड बाय पैथोजेंस. दीज जीन्स कैन enter our body through the air we breathe or by consuming contaminated food or water and more. So ये क्या होती हैं, या तो एयर से हमारी बॉडी में चले जाती है, किसी भी तरीके से जो हमने कुछ ऐसा फूड खा लिया जिसमें ये है तो उसकी वजह से ये हो सकती है, पानी तक भी. बट
हाउ डू दीज पैथोजेन्स स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, लेकिन एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे जाते हैं? सो वन कॉमन वे इज थ्रू एयर, सबसे जो कॉमन वे है वो क्या है? एयर. व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ और स्नीज, जब भी किसी इंसान को ये प्रॉब्लम है, ठीक है, वो कफ करता है, स्नीज करता है, या फिर आप तो क्या होंगे, उनके जो भी वायरसेस हैं या जो भी चीज़ें हैं वो एयर में फैल जाते हैं, और आप वहीं पर एयर में आसपास है, उनके पास है, तो वो आपके पास भी आ सकते हैं. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जैसे कि हाथ हैंडशेक करना, और इनडायरेक्ट बाय शेयरिंग पर्सनल आइटम ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन. सम ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर और फूड. सम पैथोजेंस आर ऑल्सो स्प्रेड बाय इंसेक्ट्स, मॉस्किटो और हाउस फ्लाइज, इनसे भी हो सकता है. दीज इंसेक्ट्स आर कोल्ड वेक्टर, इन्हें क्या बोला जाता है? वेक्टर, जो उस जो है इन्फेक्शन को या डिजीज़ को दूसरे तक लेकर जा रहे हैं. बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ डिजीज स्प्रेड वी टेक सिंपल स्टेप टू प्रोटेक्ट देमसेल्स, तो हम सिंपली खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और खुद को दूसरों को भी कैसे? लेट अस फाइंड आउट हाउ दिस कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड एंड हाउ वी कैन प्रिवेंट दैम. So, grade 8 student listed some common communicable disease in table 3.1 during a community campaign and a library survey. Check the information listed by referring a book, trusted website or asking your science teacher. Add any missing details. आप ऐड भी कर सकते हैं. Study the table and think about what simple steps can you take to prevent these. जैसे कि कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा वगैरह है तो वायरस की वजह से हुआ है. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है. सिम्टम्स क्या है? नेजल कंजेक्शन होता है, डिस्चार्ज होता है, और सोर थ्रोट होता है, और फीवर, कफ, बॉडी एक. वॉशिंग हैंड फ्रीक्वेंटली, नॉट शेयरिंग पर्सनल आइटम, कवरिंग द माउथ एंड नोज. चिकन पॉक्स, ये भी वायरस है, सेम उसी तरह से स्किन पर माइल्ड फीवर, इची स्किन, रैशेज और ब्लिस्टर्स होते हैं. क्या कर सकते हैं? कंप्लीट आइसोलेशन होना चाहिए पेशेंट का, कवरिंग द माउथ एंड नोज, वैक्सीनेशन. मीजल्स वायरस है, स्किन, रेस्पिरेटरी एंड ट्रैक्ट. And then fever, sore throats and readiness rashes on the neck, ear and other part of the skin. Isolation of the patient, covering the mouth and nose, maintaining good hygiene, vaccination. Then उसके बाद TB जो होती है बैक्टीरिया है, लंग्स की वजह से, कफ, फीवर, फैटिग, लूज ऑफ एपेटाइट एंड नाइट स्वेट. Avoiding close contact with TB infected people, covering the mouth and nose, maintain good hygiene and getting vaccinated. Disease spread through contaminated water and food. हेपेटाइटिस बी, जैसे कि वायरस है, लिवर में होता है. फीवर, लॉस्ट ऑफ एपेटाइटिस, नोसिया, वोमिटिंग, जोंडिस, पेन इन द अपर राइट अमेंडम, बहुत कुछ होता है. क्या करना है? ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, वैक्सीनेशन. अब ये है बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में, टाइफाइड है, तो ये सारे मोस्टली वही हैं. डायरिया, डिहाइड्रेशन, हेडेक, अबंडनमल और डिस्कम्फर्ट, फीवर एंड डायरिया. पर्सनल हाइजीन, गुड हैबिट्स, सेम उसी तरह से जो उसमें है वो यहाँ है. प्रॉपरली कुक्ड फूड आपको यूज़ करना है, बोल्ड ड्रिंकिंग वाटर लेना है, और वैक्सीनेशन होनी चाहिए. देन राउंड वॉर्म्स होते हैं इंटेस्टाइन में, वॉर्म्स एंड स्टूल, लॉस ऑफ एपेटाइटी, पुअर ग्रोथ, डायरिया, वेट लॉस, एनीमिया. मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, कंजम्पशन ऑफ प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बोल्ड ड्रिंकिंग वाटर. नाउ डिजीज ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट. मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, स्किन एंड ब्लड, हाई फीवर, प्रोफ्यूज स्वेटिंग एंड पीरियोडिक चिल्स. यूज ऑफ मॉस्किटो नेट्स एंड रेपेलेंट्स, वियरिंग लॉन्ग स्लीव्ड क्लोथ्स, कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो ब्रीडिंग. डेंगू फीवर, वायरस, स्किन एंड ब्लड, फीवर, हेडेक, मसल्स एंड जॉइंट पेन. यूज ऑफ मॉस्किटो नेट्स, रेपेलेंट, मतलब जो मॉस्किटो से होते हैं उनके लिए सेम यही इसी तरह की चीज़ें हैं. सो यहाँ पर आपको पता चला कम्युनिकेबल डिसीज़ कौन कौन सी है और किससे उनसे आप बच सकते हैं. कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो आप वहाँ पे डाल सकते हैं. सो बाय स्टडिंग द टेबल 3.1 वी कैन अंडरस्टैंड हाउ infectious disease spread and how to prevent them. Here are some simple but important precaution. Keeping ourselves and our surrounding clean, practicing basic hygiene every day, washing hands with soap and water to remove pathogens, covering your mouth and nose while coughing or sneezing, wearing a mask in crowded places provides protection. Avoid sharing of personal items like towel or handkerchief, keeping our home and food and water clean, staying at home and resting when we are unwell, help the body recover and minimize spreading the disease to other. Some infectious disease are caused by worms that live inside our body, especially in the digestive system. They feed on nutrients and live on parasites.
organisms that live in or on other living beings. उन्हें क्या बोला जाता है? पैरासाइट. These worms usually spread through contaminated food, water, soil or contact with infected people or animals. How are non-communicable disease caused? अब non-communicable disease कैसे होती हैं? So you have learned that non-communicable disease like cancer, diabetes and asthma are linked to lifestyle, diet or environment. They are the most common cause of death in India. In grade 6 you also learned about disease scurvy, anemia or gallert. So which are caused by a lack of specific nutrient in the diet. जो किस वजह से होते हैं? जब आपकी डाइट में कोई ना कोई जो न्यूट्रिएंट है वो ना हो तो वो बहुत कम हो जाता है इस वजह से. दीज आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज एंड ऑल्सो नॉन कम्युनिकेबल. डेफिशिएंसी डिजीज है यानी कि किसी ना किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है. डिजीज सच एज कैंसर, डायबिटीज एंड अस्थमा मे ऑफन परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि 3 महीने या इस तरह चलता है. एंड ऑल्सो रेफर्ड टू एज chronic disease. Diabetes is a common disease which is becoming more prevalent in adults as well as children. और डायबिटीज़ ऐसी है जो बहुत ज़्यादा फैल रही है लोगों में, अडल्ट और कुछ खासकर बच्चों में भी. In fact, India now has one of the highest number of people with diabetes in the world. अगर आप देखेंगे तो इंडिया जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल हैं इंडिया में दुनिया के जिनको डायबिटीज़ है. It often develops due to the combination of hormonal imbalance, unhealthy eating habits, lack of physical activity, being overweight or obese and other reasons. तो बहुत सारे इसके रीज़न हो सकते हैं. Let us learn more about the cause of non-communicable disease and their prevention. Find out the 3 most common lifestyle related disease in your neighborhood. Talk to a doctor, nurse and health worker or even a family member who knows about health and what kind of lifestyle changes can help prevent to or manage the disease. You can also consult trusted health website, book or teachers and doctors. अब यहाँ पर कुछ दिया है, डिजीज़ बताए हैं, जैसे कि ओबेसिटी किस वजह से होती है? मोस्टली मतलब बहुत ज़्यादा जब वज़न बढ़ जाता है उसे बोलते हैं. क्या चेंज कर सकते हैं? बैलेंस डाइट खानी है और एक्सरसाइज करनी है. डायबिटीज़, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, एक्सेसिव थ्रस्ट, वेट लॉस, टायर्डनेस और स्लो हीलिंग. सो आज हम करेंगे इतना ही, उसके बाद आगे का करेंगे कल. अभी तक अगर यहाँ पे कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.